اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کے تحت آج 24ویں آیت کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہمارا چیپٹر 10 چل رہا ہے اور ایپیسوڈ نمبر 4 ہم لے رہے ہیں۔ آیت کچھ یوں ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا 2/24۔ یہاں پر دو الفاظ قرآن لے کر آیا ہے، لم اور لن، بلکہ حروف لے کر آیا ہے۔ اب چونکہ قرآن کے مخاطبین نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، یہ چیلنج کیا تھا، پچھلی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ چیلنج تھا کہ قرآن کی مثل کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسی کتاب، کوئی بھی ایسی پوری عمارت نہیں صحیح، ایک منزل لے کر آئیں جس میں انسان کے تمام جو شعبۂ زندگی ہیں ان کو وہ قوانین ایز اے ہول لیتا ہو۔ تو کسی نے بھی عرب کے اس دور میں یہ پیش نہیں کیا، اور آج بھی ہم اس جدید دنیا میں بھی جانتے ہیں کہ ایسے کوئی بھی فلسفہ یا قوانین نہیں لائے گئے سامنے جو مین ایز اے ہول اس کو کور کرتا ہو، یا کسی مملکت نے بھی کوئی نظام دین یا کوئی آئین ایسا نہیں بنایا، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی ہے کہ یہ چیلنج تھا۔ اچھا، اس چیلنج کو تو قبول نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے عقل اور بصیرت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ مخالفت کی گئی بلکہ اس مخالفت میں آگے بھی بڑھتے چلے گئے، اور اگر یہ نہ ہو سکا کہ وہ مخالفت میں آگے بڑھے ہوں تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ حق کا جو راستہ ہے یا جو لوگ حق کے راستے میں چل رہے ہیں، چاہے وہ کم ہی صحیح، ان کے راستے کے سامنے روک بن کر ضرور کھڑے ہو گئے، جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کا جہنم ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے راستے پہ چلنے والوں کے سامنے روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، یعنی تباہی اور بربادی کا جہنم ہے۔ یعنی ایسا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس زندگی میں بھی اور موت کے بعد آنے والی زندگی میں بھی، یعنی یہ جہنم جو ہے وہ اس زندگی سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا تسلسل مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی رہتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پوری آیت میں پڑھ رہا ہوں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 2/124۔ یہاں دیکھیں دو الفاظ آئے ہیں، الناس والحجارت۔ تو یہاں عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ بچو پھر جہنم کی اس آگ سے۔ اس النار کا، آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہاں جو عام ترجمہ ہے اس کے ذریعے سے پتھر اور انسان معنی لیا گیا ہے۔ یہ جو پتھر ہیں ان کو اس جہنم کے اندر ڈالنے سے فائدہ کیا ہوگا، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر والحجارت سے مراد پتھر لیا جائے تو اس پتھر کو جہنم میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے، ایک لفظ آگے بڑھنے سے بات صاف ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، یہ بھی اسی آیت کا ایک آخری حصہ ہے، یعنی کافرین کے لیے ہے۔ یہ آگ، یہ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو کہا گیا کہ کافرین کے لیے، اسی آیت میں ہے۔
और पत्थर काफिर भी नहीं होता और ना मोमिन होता है। तो क्या पत्थर काफिर और मोमिन होता है? ऐसा तो नहीं होता। ना पत्थर का कसूर होता है और ना उसकी नेकी होती है कि हम उसको जहन्नुम में या जन्नत में डालें। ये जहन्नुम, ये अन्नार कुफ्र का नतीजा है। ये तो आप और हम समझ चुके हैं इन आयतों के ज़रिए से कि जहन्नुम और ये अन्नार जो है ये कुफ्र का नतीजा हुआ करता है। फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर 18/29। जिसका जी चाहे अपने इख्तियार और इरादे से इसका इकरार करे और जिसका जी चाहे अपने इख्तियार और इरादे से इसका इनकार कर दे। ज़ाहिर है कि आपने जब इकरार किया है कुरान की तालीमात का तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर इनकार किया है तो भी ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने अपने इख्तियार और इरादे को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। अब पत्थर तो इख्तियार और इरादे का मालिक नहीं होता। अगर ये जहन्नुम है तो फिर यकीनन ये उसके अंदर पत्थर नहीं हो सकते, चूँकि पत्थर में इख्तियार और इरादा नहीं होता। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जहन्नुम में इंसान अपने इख्तियार और इरादे से ही जाएगा। पहले अपने इख्तियार और इरादे को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जहन्नुम में जाएगा। तो ये पत्थर यकीनन नहीं हो सकता कि उसके पास इख्तियार और इरादा नहीं है। अरबी ज़ुबान के एतबार से अन्नास आवाम को कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं और तराजुम में भी आया है। और हिजर के लफ्ज़ के मायने अक्ल व होश वाले लोग होते हैं। और हिजर के लफ्ज़ के मायने अक्ल और होश वाले लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आगे बयान किया जाता है। यानी चालाक लोग, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग, यानी जी हिजर। ये जो जी हिजर कहा जाता है ये तो हमारे यहाँ आमतौर पर मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है। अब एक आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ 89/5 यानी 89/5। हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिजर, यहाँ पर हिजर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम इसे अवाम और उनके लीडर कह सकते हैं। ये तो हमने एक वो किया है कि हम इसको हिजर का मतलब जो है वो लीडर कह सकते हैं, चालाक लीडर कह सकते हैं। और अन्नास तो अवाम है ही। क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि आम तराजुम में भी हिजर के मायने इसी आयत के तहत आप देखेंगे तो अक्लमंद लोग लिया गया है। जहन्नुम में अवाम और उनके लीडरों की बाहिमी इल्ज़ाम तराशी के मकालमात का कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर इबरत अंगेज़ और सबक आमोज़ अंदाज में ज़िक्र मौजूद हुआ है। दूसरी दलील ये है कि अगर आप कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात पर गौर करें या आप मुसलसल पढ़ें और पढ़ते होंगे तो जहन्नुम के ये मकालमात जो हैं लीडरों और आवाम के दरमियान, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के मकालमात पेश किए गए हैं जिसमें आवाम अपने लीडरों से झगड़ा कर रही होती है। उससे मुराद इबरत अंगेज़ और सबक आमोज़ वो मकालमात होते हैं, लेकिन बहरहाल ये कुरान मजीद के अंदर हैं लीडरों के और आवाम के दरमियान में। तो ये उसी तर्ज पर इसको हमने लीडर लिया है। अच्छा, ये जो जहन्नुम के ये मकालमाएँ हैं कुरान मजीद के अंदर, ये दरअसल हमारे ही माशरे की बातें होती हैं। आप इन मकालमात को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो हमारे ही माशरे की बातें हैं, ये कोई अलग से बातें नहीं हैं। यानी ये कोई गैब की बातें नहीं है, ये आम तौर पर आपके और हमारे दरमियान में रोज़ाना गुफ्तगू होती रहती है। ये तो हमारा फ़रेब नफ्स है कि हमें अपने आसपास जहन्नुम नज़र नहीं आती, ये हमारा फ़रेब नफ्स है। वरना हकीकत में कुरान जब इस बात की पर रोशनी डालता है तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो कुरान जहन्नुम जिसको कह रहा है ये तो दरअसल हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है। और जो जहन्नुम नज़रों से ओझल है और आने वाली ज़िंदगी में है, इसका ही ज़िक्र करते हैं। यानी कुरान मजीद में यही ज़िक्र है, इसी को जहन्नुम कहा गया है जो हम आसपास देखते हैं और उसको पहचानते नहीं हैं। फ़रेब नफ्स की वजह से हम उससे नज़रें चुरा लेते हैं।
यही ज़िक्र कुरान मजीद में इस जहन्नुम का है जो दुनिया में हम भुगत रहे हैं, और वही ज़िक्र जो है वो मरने के बाद की ज़िंदगी में भी जहन्नुम का किया गया है। जब कौम पर तबाहियाँ आती हैं तो अवाम और लीडर एक दूसरे को मतऊन करते हैं। ये जब मतऊन कब करते हैं? ये तब करते हैं जब इन पर तबाहियाँ आती हैं, उस वक्त इनको गुस्सा आता है, वरना तो ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है। दोनों के मकाल में ख़ुद को माजूर साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अवाम और उनके लीडर के मकाल में से आप एक नतीजा ज़रूर अख़ज़ करेंगे, और वो ये नतीजा होगा कि दोनों एक दूसरे को माजूर साबित करेंगे कि ये कसूर हमारा नहीं है, ये उसका है। दोनों ही अदालत में एक दूसरे को दोहरा अज़ाब देने की इस्तदा करते हैं। दोनों ही अदालत में एक दूसरे को दोहरा अज़ाब देने की इस्तदा करते हैं। आप देखें दुनिया में भी ऐसा ही होता है, और आखिरत की अदालत का यहाँ ज़िक्र है, तो यही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते दूसरी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन अदालत से जो फ़ैसला होना होता है या होगा, उससे तो हम भी छूट नहीं सकते, अवाम भी और लीडर भी दोनों ही नहीं छूट सकते। वहाँ से तो दोनों के लिए दोहरे अज़ाब का फ़ैसला होता है। बड़े लीडर उनको इसलिए दोहरा अज़ाब कि वो गुमराह हुए, यकीनन उन्होंने कुछ किया है, कुछ गड़बड़ तो की थी, और उन्हीं की इत्तिबा फिर अवाम, उनकी अवाम, उन्होंने इत्तिबा की तो वो भी गुमराह हुए, तो ये भी गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। और इन्होंने भी ये सोचा ही नहीं कि ये 4-5 मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है। अवाम भी कभी ये सोचती नहीं है कि ये जो 4-5 सियासतदान हैं, या ये जो हाकिम हैं, या जो लीडर हैं, ये तो हैं तो 4-5, ताकत तो अवाम के पास ही होती है। ये लीडर होते क्या हैं? ये तो बर्फ़ के तोदे होते हैं जो अवाम के गुस्से की ज़रा सी हरारत से पिघल जाते हैं। ये वो खुदा हैं जो तुम्हारे सजदों के मोहताज हैं। ये वो खुदा नहीं है जो तुम्हारी अबूदियत का मोहताज नहीं होता। उस खुदा के सामने चाहे क़याम हो, रुकू हो, सजदा हो, वो खुदा ही है। जिन्हें तुमने खुदा बना रखा है, कभी उनके सामने क़याम में खड़े तो हो जाओ, फिर देखो वो लीडर कैसे भागता है अपने रास्ते की तरफ। लेकिन वो लीडर इस जहन्नुम से निकलने का कोई रास्ता नहीं पाता। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार 2/167। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये आज हमने 24वीं आयत ख़त्म नहीं की, इंशाअल्लाह अगली मरतबा ख़त्म करेंगे, एपिसोड 2 में ख़त्म करेंगे। तो ये हमने चैप्टर नंबर 10 एपिसोड नंबर 1 कवर किया है, 24वीं आयत का। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।